I do not know, Maharaj, please shower your mercy on me so that I can speak something. So let's see that why we are doing all this parikrama. What is the reason of doing this parikrama? And what do we want that we have to do this? So we have come in this material world due to our own fall. Everybody knows Jeevana Swarupa and Nitya Krishna Das. But what we chose to enjoy our own senses. We didn't want to serve Krishna, and that is the reason, like Mahamaya has caught hold of us, given us subtle body. Very merciful. We are part and parcel of the Lord. So when Lord thought that this Jeev is not going to be with me, not going to follow me, he was very, very sad. So he came in three forms. First he said, oh, you are going to material world? No problem. I will go and live inside your heart and I will guide you. So he came as a Paramatma. But you know, conditioned souls are very stubborn. They are not going to listen from their inside. So he said, okay, I will come as a guru too, and I will guide you that how to lead the life and come back to me. You belong to me. You do not belong to this material world. You will be suffering. So that's why a condensed form of the mercy of Lord is Guru too. So as we have gone to school and we never listened to our material Gurudev, are we going to listen to our spiritual Gurudev? He knew it. So he said, okay, let me come as Bhagavad, spiritual book, because most of the people say, show me evidence from where it is being sold. So Srimad Bhagavatam is Krishna himself. So he came in three forms to guide this conditioned soul like us. He said, I have to show the example. That is the reason he came in the Prakat world, Prakat Golo, to do all the Leelas. These Leelas are done so that this conditioned soul like us can get attracted to Lord and go back to Godhead. So this is also a process. We are not going to go back. So he said that first, you are going to suffer. That's why material world, Mahamaya is not a bad thing. She is very good because till then we could not have suffered by threefold of misery, Adi Daivik, Adi Bhautik or Adhyatmi. We could not have come to realize why we have come to this world. This discrimination is very much needed. That what we are doing, what we are supposed to do. When that kind of thing comes, and it is not going to come just like that. We have taken millions of births, we have knowingly or unknowingly, we have done some kind of God Unmukhi work so that our Sukriti has matured. 100% I can see that whosoever is present here, and Maharaj will support me, that their Sukriti is matured. That's why we have taken Guru Padasana. We are following Gurudev. Guru is eternal. Guru is not different. My Guru, your Guru, someone else's Guru is not different. Guru is Guru. And believe in Guru is one. Akhanda Guru Tattva is Baldev Prabhu, and from there, different Guru comes. So our my Gurudev is Aprakat, though he is very close to me, but he has sent so many representatives. Ban Maharaj is one, Padmana Maharaj, Siddhanti Maharaj. So we have to follow them. I am trying to follow them very closely. Please try to follow so that we can one day go from here to Golok Vrindavan. So, Hare Krishna. Maharaj ki jai. अभी हम लोग दर्शन करते हैं। अभी हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन किया। क्या दर्शन किया? बोले जगन्नाथ जी कैसे महाभाव प्रकाश करते हैं। क्या कहा जाता है? महाभाव प्रकाश। इस प्रकार राधा जी कृष्ण विरह में तड़प और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव यानी कृष्ण किसके विरह में तड़प रहे? राधा रानी के विरह में तड़प। आज चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के
कृष्ण विरह में तड़पते। इसलिए गौरगोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं ये जगन्नाथपुरी में एक ही साथ में दो विरह विग्रह के आपको दर्शन होते हैं। एक है विरह विदुर कृष्ण और एक राधा विरह विदुर चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु अपने के सोचते हैं जब मैं राधा हूँ। आज जगन्नाथ जी के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं ये अनेक सुदीर्घ विप्रलंब के बाद आज मैं अपने प्राणकांत गोविंद के साथ मिल रहा हूँ। ये भाव है जगन्नाथ मंदिर में आने के यही तात्पर्य है महाप्रभु के विचार महाप्रभु के भाव को ग्रहण करना। नित्य गीत तो करें सभी भक्त लोग बहुत सुंदर में नित्य गीत किया। गोपियां भी नित्य गीत करती है। आप लोग भी सब गोपियों के बारे में नित्य गीत किया बहुत अच्छा लगा। भाव तो अच्छा ही है तो उसी भाव में ले जाएंगे। मिलन में विरह और विरह में मिलन होता है। यही जो है कृष्ण के दर्शन करके गोपियों के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुई वो भाव हमें नहीं चाहिए है। इसलिए कहता है विरह विदुर कृष्ण राधा विरह विदुर कृष्ण और कृष्ण विरह विदुर राधा। ये जगन्नाथ जी के पास हम आए हैं। ये समस्त भावों के जो है चिंतन करने के लिए। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। और कितने सुंदर सरोवर है आप लोगों ने दर्शन किया है। इसको देख करके वृंदावन की उद्दीपना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उद्दीपना स्टिमुलेशन होनी चाहिए है। कितने सुंदर हवा भी कैसे सुंदर आ रहे देखो है। आप लोग बड़ वृक्ष के नीचे आप खड़े हुए हैं। बंसी भट्ट है दिव्य वृंदारण्य कल्पद्र माधव श्रीमाद रत्नागर सिंहासन श्री श्री राधा शिल गोविंद दिव्य पृष्ठादिवी शिव मानो स्मरामी है। ये जैसे लग रहे हैं ये साक्षात वृंदावन में बंसी भट्ट के तट और जमुना की तट पर हम लोग खड़े हुए हैं और राधा कृष्ण की ऐसे सुंदर लीला आदि चल रहे। सारी गोपियां भी है। और देखो गोपेश्वर महादेव भी वृंदावना बनिपते जय सोम सोम मौली है। सनक सनातन नारद इड्ड गोपेश्वर ब्रज विलासिनी युगांग्री पद में प्रेम प्रजच्छति निरुपाधि नमो नमः। देखो हमारे साथ महादेव भी इस लीला को दर्शन कर रहे हैं। इसलिए महादेव की हमने जल चढ़ाया। चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? नहीं चढ़ाया तो पानी में इसमें स्नान कर लो है। नहीं स्नान नहीं किया तो कम से कम हाथ में पानी लेकर के आचमन कर लो छिटक लो। प्रभु तो पूरा स्नान कर लिया अच्छा है ना पूरा कृपा कर गया। बोले वृंदावन बिहारी। हाँ अभी हम लोग बस में जाकर के बैठे और बैठ में कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर गंतव्य स्थान पहुंचे और फिर 4 बजे 4:30 बजे आज भागवत कथा में सम्मिलित हो और विशेष करके आज राधा जी की आविर्भाव लीला हम पालन करेंगे। जन्म लीला है। ये तो बरगद का पेड़ है ना। हाँ हाँ ये बंसी बट इतने समझ बट माने बंसी बट दिव्योद वृंदारण्य कल्पद्र माधव श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्तु श्री श्री राधा है। ये हम लोग ये बंसी बट के नीचे खड़े हुए। कितने सुंदर जो स्थान मनोरम स्थान है कि नहीं है। हाँ दोनों तरफ भी देखो उस तरफ भी है इस तरफ भी है। उस तरफ सब गोपियां बैठे हुए हैं कौन सा गोपी बैठे हुए हैं? चंद्रावली के पक्ष क्या राधा जी के पक्ष? बताओ कौन पक्ष आप लोग है? ये बोल रहे आप लोग सब चंद्रावली के पक्ष में बैठे। अरे इधर आ जाओ सब ये देखो कितने सुंदर है। बृहद भागवतामृतम इसका वर्णन है। गोप कुमार जो है गाय चराते चराते इसके ऊपर जो है दोल खाते थे। दोल खाता समझ ऐसे हाँ छूट जाएगा।
अच्छा चलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हाँ चलो, हो गया। हाँ नहीं, उधर आ जाइए, मैं आपको नहीं, अरे टूट जाएगा फिर। पेड़ के क्यों कष्ट देते हो? तुम्हें कोई कष्ट है? महाराज ऐसे जगह पर पता होनी चाहिए, हाँ? ऐसा जगह पर